Hello friend, I hope you people are doing well and finding physics really interesting. If not, I will try to make it interesting to you. Without wasting much time, let us start chapter 2 of H.C. Verma, volume 1. That is physics and mathematics. Maths is the language of physics. Maths make it easy to express physics. In this chapter we will study about vectors and some formulae of calculus. Let us start with vectors. As you might have learned in high school, vectors are physical quantity having both magnitude as well as direction. इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. एग्जाम्पल: वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, etc. Some properties of vector or operation of vectors. फर्स्ट है, पहला है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. चूंकि वेक्टर का डायरेक्शन है तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं. इन एक्स वाई प्लेन along x and y axis and in space along x, y and z axis. Suppose we have vector making an angle alpha, vector A making an angle alpha with x axis and beta with y axis. Then component of A along x axis would be cos alpha into A, that is A cos alpha. Similarly, component along y axis would be A cos beta. Whole vector can be written in this way: A is equal to ax cos alpha I plus ay cos beta j. We will tell later on what is I, j and k. Suppose the vector A, another vector B makes an angle alpha, beta and gamma with x, y and z axis respectively.
then component of vector b along x-axis would be b cos alpha. Similarly, component along y-axis would be b cos beta, and component along z-axis would be b cos gamma. दिस इज रिजोल्यूशन. यानी हम लोग एक वेक्टर को, कोई सा भी वेक्टर हो, उसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि एक वेक्टर एक ना हो के दो वेक्टर है. अगर हम वी आर डीलिंग इन टू डायमेंशन, और वी कैन ट्रीट इट लाइक ये वेक्टर इट इज it has three, there are three vectors in the, if it we are dealing in 3D space, और दोनों या तीनों जो उसके कंपोनेंट है, वी कैन डील विथ इट सेपरेटली, नो प्रॉब्लम. Now, what is I, J and K? I is taken as unit vector along x-axis. J is unit vector along y-axis. Similarly, K is unit vector along z-axis. Now, second, we will deal properties of vectors is equality of vector. These are not actually properties, but some operations related with vectors. The vectors are equal. Two vectors are considered equal if they have same magnitude and same direction. Now, as two parallel lines have same direction, so a vector can be moved in parallel direction, and there won't be any change in it. Now we will learn about addition of vector. How vectors are added. ये बहुत ही important है, क्योंकि मेनली वी हैव एडिशन ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं. देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी डिवीजन ऑफ वेक्टर्स. और जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है, दैट इज ऑल्सो वी कैन टेक इट एज एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर. वी विल टेल दैट लेटर ऑन. अभी देखिए दो वेक्टर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं. देयर आर टू मेथड बाय विच वी कैन ऐड वेक्टर्स, बाय ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगुलर मेथड, एंड बाय पैरेललोग्राम मेथड. दोनों सिमिलर ही है. आपको I will teach you. Suppose we have a vector A, and then we have another vector. This is the vector. Suppose there is another vector, this is B. So we want to add A and B. This is B, and this is A. So A has both direction as well as magnitude. B also has magnitude as well as direction. Now final vector, this would be final vector A plus B. So now we will have to calculate its direction, magnitude and direction. तो हमें पहले देखना होगा कि A और B वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है. सो ये कंफ्यूज मत हो जाना. दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन देम. आप A को एक्सटेंड करो, दोनों का जो दोनों के बीच में जो आएगा, दिस इज द एंगल. दिस इज, सपोज दिस इज थीटा. सो B हमने पहले बता दिया. B को रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस, और यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री भी आप समझ सकते हैं कि ये जो आएगा, ये आएगा B कॉस थीटा, और ये होगा B साइन थीटा. तो A जो यहाँ से यहाँ तक A प्लस B है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये होगा
रूट अंडर ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, विच इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नो, ये और ये दोनों मिलके वन, बी स्क्वायर विल टेक कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन, सो इट बिकम्स बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का एडिशन करने के बाद मैग्नीट्यूड है, बट वेक्टर ऑल्सो है डायरेक्शन, सो वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन एज वेल. Let us take this. This is the angle that, this is the final vector that makes with vector A. So we can say like this: tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. So from here we can calculate alpha, and alpha is the direction of resultant vector R. We can write it like that: रिजल्टेंट वेक्टर आर विथ वेक्टर ए. ठीक है, डायरेक्शन भी आ गया, सो कंप्लीट हो गया एडिशन. नाउ वी विल टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम एस वर्मा. टू वेक्टर्स क्वेश्चन एग्जाम्पल है. टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड ए मेक्स एन एंगल थीटा विद देम, बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट. हमें रिजल्टेंट निकालना है. तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है. देयर इज टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी ए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों के बीच में एंगल है थीटा. तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर इधर से होगा, ये होगा. तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो निकालना है. तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो वी कैन से रिजल्टेंट का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा. इट इज 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा. We can take 2a square common. 2a square is equal to 1 plus cos theta. Now we have a formula के cos 2a हमें पास एक फॉर्मूला है कि cos 2a is equal to कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. एंड साइन स्क्वायर इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो इट कम्स आउट टू बी, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, विच मीन्स 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए. तो यहाँ पे हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, और वी विल गेट रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. तो ये 4 का हो जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2. तो ये रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड. अब हम डायरेक्शन निकालना कोशिश करते हैं. व्हाट विल बी डायरेक्शन? एक बार फिर हम डायग्राम बनाते हैं. सॉरी, ए एंड इट मेक्स एंगल थीटा. नो वेक्टर रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट. तो हमें फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया. अब इसका हमें डायरेक्शन निकालना है कि डायरेक्शन क्या है. डायरेक्शन विथ ए.
तो जैसे हम लोगों ने पहले कहा tan A इक्वल टू A साइन थीटा प्लस A कॉस थीटा, या अगर हम इस तरह से डायग्राम बनाए तो शायद आपको समझने में आसानी होगा। ए इसको हम इधर मूव कर लेते हैं, दिस इज A cos थीटा, दिस इज A sin थीटा। दिस इज tan अल्फा। तो दिस इज इक्वल टू A sin थीटा का फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, sin 2 A का फॉर्मूला होता है टू साइन टू, वी कैन राइट दिस इट लाइक दिस A इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अभी शायद ये फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है तो इसको समझने में हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी, बट लेटर ऑन आई विल टेल ऑल द फॉर्मूला ऑल्सो, फॉर्मूले ऑफ trigonometry which we would be using very frequently, and also some formula of calculus। तो अभी आप ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फार्मूला देख लीजिए और फिर मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। और A प्लस A cos थीटा वी कैन राइट इट लाइक दिस, 2A इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, जस्ट पहले जो हम लोगों ने यूज़ किया, थीटा बाई 2। तो ए यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया, एक यहाँ से एक कट जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, दैट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। यानी कि जब भी दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, देन द रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, ये आधा हो जाएगा। Now we will move to subtraction of vector. What is how we subtract? It's very easy. सिर्फ हमें इतना जानना है कि if we are subtracting vector b from a, it is as if we are adding minus v to a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा। और हमें एक चीज़ और जानना पड़ेगा कि हम वेक्टर माइनस ऑफ व्हाट डू वी मीन बाय माइनस ऑफ वेक्टर बी। माइनस ऑफ वेक्टर बी इज नथिंग बट वेक्टर बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज अगर हम वेक्टर एनी वेक्टर को रोटेट करते हैं, इसको याद रखो आप, इफ़ वी रोटेट एनी वेक्टर by 180 degree, any vector say A, it becomes minus A, और B माइनस B। तो ये एक वेक्टर A है, मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन, तो जस्ट इसके उल्टे डायरेक्शन में आप ले लीजिए सेम मैग्नीट्यूड का, तो ये माइनस ए हो जाएगा। बस यही समझना है आपको, और कोई भी परेशानी नहीं होगी। Let us take vector A, let us take vector B. This is vector A, this is vector B। तो A माइनस बी क्या होगा, जस्ट हमको इसके उल्टा डायरेक्शन में बनाना है, ठीक है। तो ये माइनस बी हो जाएगा, दोनों के बीच में अंदर थीटा आएगा तो हमें ऐड करना है, हाँ। तो ये माइनस ए 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और हमें दोनों को ऐसे ही ऐड करना है जैसे हम लोग ने ऐड पहले किया है। तो रिजल्टेंट हियर, ये रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वुड बी रूट अंडर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और फिर ये जो रिजल्टेंट होगा इट विल मेक एन एंगल दिस एंगल, रिजल्टेंट का ये एंगल बनाएगा ए से। दैट ऑल्सो वी कैन इजीली कैलकुलेट। Now we will take another question from S.C. Verma exercise question. कि there two vector of magnitude a, magnitude 5 unit, और make an angle of 60 डिग्री। तो हम ऐड करेंगे तो कितना मैग्नीट्यूड होगा और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मैग्नीट्यूड होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन है कि एक 5 यूनिट का एंगल है, 5 यूनिट और 5 यूनिट का, दो 5 यूनिट का वेक्टर है, दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है। तो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले। रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री। ये ऐड का है, एडिशन का। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 25 50 प्लस 50 इंटू हाफ इज इक्वल टू रूट 75 इज इक्वल टू 5√3। अब ये तो ऐड करने का निकल गया, लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट करने का भी निकालना है। यानी दो वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ओनली, 5 यूनिट और 5 यूनिट। तो हमें ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना निकलेगा क्लियरली है। हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला पहले निकाल चुके हैं, उस तरह से निकाल सकते हैं। ये दोनों के बीच में थीटा है, ये एंगल, ये ए है, ये बी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी क्या हमने बताया था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस के बजाय यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। तो आप उस तरह से कर लीजिए। 25 प्लस 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू कॉस 60 यानी हाफ, तो हाफ हाफ हो जाएगा। ये 25 चला गया, रूट 25 यानी 5 यूनिट। नौ अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। वी मस्ट नो कि कोई डिवीज़न का कोई ऑपरेशन नहीं होता है वेक्टर में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, हम लोग ये इट कैन बी डन इन 2 वे। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। नंबर 1 इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। नंबर 2 इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम इस वीडियो में बताएंगे, और देन इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज थोड़ा लंबा हो गया, देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मेक वेक्टर, वी विल टीच वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और when two vectors are multiplied in such way that the resultant is itself a scalar quantity। दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्टेंट एक स्केलर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ वी डिफाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज सपोज ए डॉट बी। इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन देम, और इसका कोई डायरेक्शन चूँकि होता ही नहीं है। ये जो ए डॉट बी है ये इटसेल्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो हमें डायरेक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो जाता है, ये ही मैग्नीट्यूड है। अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग कैसे करते हैं। डॉट प्रोडक्ट
two vectors along coordinate component along the coordinate axis. No. कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने पहले भी मैंने बताया था कि आई जे आर के आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो कोई भी वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, यानी ये एक्स ए एक्स उसका मैग्नीट्यूड है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ए वाई उसका मैग्नीट्यूड है अलॉन्ग वाई एक्सिस, ए मैग्नीट्यूड है अलॉन्ग के एक्सिस. सिमिलरली हम किसी वेक्टर बी को लिख सकते हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के. अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं. डॉट प्रोडक्ट करने से पहले एक चीज़ हमें समझ लेना पड़ेगा कि हम लोग जब भी सिमिलर वेक्टर को अगर ऐड कर डॉट प्रोडक्ट करते हैं यानी आई क्रॉस ए, तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड जो कि 1 होगा, आई फिर का मैग्नीट्यूड जब कि 1 होगा, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दोनों का एंगल 0 होगा, तो कॉस 0 1 तो ये 1 हो जाएगा. सिमिलरली जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1. लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आई डॉट जे इसका क्या वैल्यू होगा, आई 1 जे का मैग्नीट्यूड 1 एंड कॉस 90, दोनों के बीच में एंगल 90 होता है, तो कॉस 90 0 होता है, इसलिए ये 0 हो जाएगा. सिमिलरली जे डॉट के हो या के डॉट आई हो, कोई सा भी जिस दोनों के बीच में अगर एंगल 90 है तो वो 0 हो जाएगा. अब हम लोग आते हैं ए डॉट बी पे आते हैं. तो सबसे पहले ए एक्स को हम बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो सेम आई क्रॉस आई है, आई डॉट आई है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स. अब ए एक्स को हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए एक्स आई को बी वाई जे, तो क्या होता है ए एक्स डॉट बी वाई और आई डॉट जे. सिमिलरली जब हम थर्ड करते हैं ए एक्स डॉट बी जेड आई डॉट के प्लस, अब इस टर्म को हम तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी गेट आई वाई ए वाई बी एक्स जे डॉट आई ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के. तो ये आई डॉट आई ये टर्म और ये टर्म 1, ये बाकी सब इसके अलावा बाकी सब 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे है आई डॉट के है, दोनों यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 90 है, तो ये सारे टर्म 0 हो जाएगा. तो ये बच जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ए डॉट बी. तो स्केलर प्रोडक्ट है ये. थैंक यू. वीडियो काफ़ी लंबा हो गया. देन बहुत जल्दी हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच.